Good morning, class. As you all remember that last time we have learned about what are acids, and we will continue with the same chapter. So let's have a quick recap of what acids are. Acids are any compounds having a hydrogen ion and a negative radical. Along with that, what did we study? We studied that acids can be classified on the basis of how many hydronium ions are they producing, right? And if they are producing only one, we call them as monobasic. If they produced two hydronium ions, we call them as dibasic, right? And if three, then we call them as tribasic acids. We also learned about this is a tribasic acid. We also learned about a strong acid and a weak acid. Any acid which dissociates completely, यानी जो अपने रिएक्शन के बाद वाटर के साथ, वाटर एंड एसिड अगर पूरी तरह से एसिड उसमें डिसोसिएट होकर सिर्फ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन विच इज हाइड्रोनियम इज प्रोड्यूसिंग अलोंग विद अ negative radical, right? This complete dissociation of the acids classify acids as the strong acid. And what are the weak acids? Let's have a look. The weak acids are the one that partially dissociates. Partially matlab that means even after they are dissolved in the water, they will not only produce a negative radical, a hydrogen ion, but also certain number of their molecules will remain as it is. They will not dissociate at all. Fine. So such acids we call them as weak acids. Now here I want to share with you a reason why are we studying about the dibasic, monobasic or tribasic acids. For this, I would like to share a screen with you. Just a moment, just give me some time. I'll just change the sharing. Here. Yes. Now the big question is, why are we at all trying to classify our acids as a monobasic, dibasic or a tribasic acid, right? अब बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने सब ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन दैट यू हैव रेड विच इज अ न्यूट्रलाइजेशन reaction. So what is a neutralization reaction? The neutralization reaction is the one that takes place between an acid and a base, right? एक acid और एक base के बीच में होता है. And what does that produce after this reaction? They produce salt and water, right? And have a look, I have used another word here which is this only. मैं हमेशा इस only के ऊपर बहुत emphasize करती हूँ क्योंकि जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में केवल यही दो प्रोडक्ट्स सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं व्हेन देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. ठीक है ना? व्हाई और हाउ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज लिंक्ड with the types of acid, इनके साथ ये कैसे related है? Now let's have a look. Right. Class, we all know that the monobasic acid, one of the best monobasic acid is HCl, right? Because HCl has got just one hydrogen atom in it, and this hydrogen atom can be easily replaced. As a result, it can form a hydronium ion. Now see what is happening here. क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, that what we are talking about here is, so here what is happening, obviously this acid will react with the base and they will produce water and they will produce a salt. इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है. Now
another thing. Let us have an example. Let's have a look at another one, which is a dibasic acid, which is H2SO4. अब बच्चे यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. H2SO4 को we can also write as HHSO4. एक बार यहाँ मैं आप लोगों के साथ इसकी डेफिनेशन रिवाइज करना चाहूंगी, जस्ट टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल कि आप लोगों को याद है या नहीं है. देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है और साथ में क्या है, एक सल्फेट है, right? So here in this, why are we considering it as acid? Because it has got replaceable hydrogen atoms and it has got a sulfate. So basically हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास सल्फेट है, राइट? जो अल्टीमेटली जाकर ये जाकर क्या करेगा, अल्टीमेटली हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, ये वाला हाइड्रोजन. तो यहाँ पे आप देखिए इन दो हाइड्रोजन से हमारे जहां पर, क्योंकि दो हाइड्रोनियम प्रोड्यूस हो रहे थे, इस वजह से हमने इसे डाइबेसिक बोला. लेकिन जब ये डाइबेसिक एसिड न्यूट्रलाइज होगा, ठीक, किसी भी एल्कली के साथ, दिस इज योर बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. तो जब ये H2SO4 विच इज अ डाइबेसिक एसिड, जब ये न्यूट्रलाइज होगा, तो ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा, देखो it has got since two hydrogen atoms in it. ठीक, तो पहले क्या होगा, obviously split होगा. This hydrogen atom will combine with this hydroxyl, right? So what will they form? They will form water here. And what is left behind? Now we are left with HSO4, or HSO4 will combine with this Na, right? तो they will be combining together. तो क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास आया NaHSO4, ये आया हमारे पास फर्स्ट सॉल्ट. ठीक है, कहाँ से आया, इस वाले HSO4 ने कंबाइन किया किसके साथ, इस वाले Na के साथ. ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, NaHSO4. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. ठीक, अभी भी देखो यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्ट जो बना है सोडियम बाइसल्फेट, इसमें देखो ये हाइड्रोजन आयन अभी भी प्रेजेंट है. ठीक, तो अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. ठीक, तो ये भी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यह फर्दर दोबारा से NaHSO4 अभी भी इस सेम एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा. इसके साथ अभी इसका रिएक्शन रुकेगा नहीं, इट विल स्टिल कीप ऑन कंटिन्यू इट्स रिएक्शन. तो अब क्या होगा, अब ये होगा, ये वाला H जो है, नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस H विल कंबाइन विद दिस हाइड्रोक्सिल आयन. लेट्स सी कैसे कंबाइन होगा. here this H will combine with this OH. ठीक है, और देखो ये H ये रहा, हाँ, और ये रहा आपका हाइड्रोक्सिल आयन, और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, इन्होंने मिलके बनाया H2O. ठीक है यहाँ तक. अब बचा क्या हमारे पास बचा एक तो सोडियम बचा, एक हमारे पास बचा ये सोडियम, राइट, और क्या बचा, और हमारे पास बचा ये SO4 which is sulfate, और भी कुछ बचा, yes, here we are left with another sodium. So count करो, ये पहला सोडियम, this is our number 1 sodium, this is our number 2 sodium, right? So 2 sodiums, see यहाँ मैंने क्या लिखा है, Na2, और क्या बचा था यहाँ पर, here we had SO4, तो ये रहा हमारा SO4. तो हमारा जो सॉल्ट बना वो कौन सा बना, Na2SO4.
4. Here it is Na2SO4. तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, जो डाई बेसिक एसिड था इसमें आपने नोटिस ये किया कि अगर कोई एसिड डाई बेसिक हो, डाई मतलब दैट एसिड मस्ट हैव टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, अगर उसके पास दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं, then it is capable of producing two salts. Here is the first salt, and where is the second salt? Here is your second salt. ठीक है, कैन यू गेस अगर मोनोबेसिक एसिड जो है हमारा, if the monobasic acid is producing only one salt, here if the monobasic acid is producing only one salt, then dibasic acid is producing two salts, एक ये रहा और एक ये रहा. So can you guess ट्राइबेसिक एसिड, जो ट्राइबेसिक एसिड होता है, हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था ट्राइबेसिक में, हमने पढ़ा था H3PO4 का. तो जो ट्राइबेसिक एसिड है, कैन यू गेस वो कितने सॉल्ट्स प्रोड्यूस करेगा? यस, वेरी ट्रू, वो प्रोड्यूस करेगा 3 सॉल्ट्स. ठीक है, देखो ये रहा आपका ट्राइबेसिक एसिड एंड इट इज प्रोड्यूसिंग 3 salts. Let's have a look. Let us understand कि 3 acids 3 salts कैसे प्रोड्यूस कर रहा है. देखिए बच्चे, अगेन this is number 1 hydrogen and number 2 hydrogen and number 3 hydrogen. टोटल 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल एटम्स हैं कहां पर? इस H3PO4 के पास. ठीक, this is your acid. H3PO4 is the acid, this is your acid and this is the base. तो सबसे पहले कैन यू गेस क्या होने वाला है इसमें? क्या तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे? नहीं. कैसे रिप्लेस होंगे? 1 by 1. सो सबसे पहले हमारा रिप्लेस होगा ये वाला हाइड्रोजन एटम. ठीक, तो ये रिप्लेस होकर कहा जाएगा? ये कंबाइन करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ. एज अ रिजल्ट क्या बन गया? देखो H, फर्स्ट H, सेकेंड H यानी H2 और एक सिंगल O. तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया H2O. ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की फर्स्ट प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, वाटर आ गया. अब लेट अस सी सॉल्ट कौन सा बनने वाला है. सॉल्ट देखो, सॉल्ट में हमारे पास यहाँ रह गए थे अब ये 2 हाइड्रोजन और साथ में एक फॉस्फेट. ठीक, और यहाँ पर बेस में हमारे पास क्या रह गया था? हमारे पास रह गया था सोडियम. तो देखो हम यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे? H2. तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बना? बना Na. कहाँ से आया? यहाँ से आया Na. ठीक, फिर आए H, ये आया H2. ठीक है, कहाँ से आया? यहाँ से आया H2. और ये था हमारा PO4. दिस इज अवर PO4. ये यहाँ से आ गया. ठीक है, तो रिएक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, बस ध्यान रखना कि किसको किसके साथ कंबाइन करना है. ठीक, इतना जब हो गया तो अब हमारे पास जो वाटर बचा उसमें तो कोई इशू नहीं है, वो तो फर्दर रिएक्शन करेगा नहीं, वाटर तो बन गया. लेकिन ये जो हमारा सॉल्ट बना, इसमें अभी भी हमारे पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स थे. ठीक है, अब मैंने इनको देखो यहाँ पे लिखा है. अब हम करेंगे नंबर सेकंड वाले हाइड्रोजन को. फर्स्ट वाले देखो इस हाइड्रोजन का वाटर बन चुका, अब हमारे इस वाले सेकंड हाइड्रोजन के ऊपर, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर. ठीक है, तो सेकंड हाइड्रोजन जो है ये भी बिल्कुल फर्स्ट वाले हाइड्रोजन के जैसा, ये वाला भी फर्स्ट वाले हाइड्रोजन की तरह से कंबाइन करेगा. किसके साथ? वाटर के साथ. ठीक है, लेट अस कंबाइन इट. दिस H will go with OH. ठीक, ये रहा आपका OH, दिस इज योर OH, दिस इज योर H, राइट. तो आपको क्या मिल गया?
H2O, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास बचा, अब देखो ये बचा हमारे पास, वी हैव गॉट हियर दिस सोडियम नंबर 1, सोडियम नंबर 2, ठीक है, और बचा ये HPO4, ठीक। तो यहाँ पे देखो, दिस इज सोडियम नंबर 1, सोडियम नंबर 2, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, Na2, और साथ में क्या बचा, HPO4, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया HPO4, तो ये हमारा बना सेकेंड सॉल्ट Na2HPO4, राइट, ये हमारा बन गया सेकेंड सॉल्ट Na2HPO4, और साथ में बचा वाटर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ भी देखो न्यूट्रलाइजेशन चल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन में ये बन रहा है हमारा सेकेंड सॉल्ट प्लस वाटर। अब आते हैं इसके थर्ड सॉल्ट फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि अभी भी देखो हमारा एक H अभी भी रिप्लेसेबल है और वो अभी भी बचा हुआ है, वो कहाँ बचा हुआ है, देखो ये रहा। तो इसको हमें कंप्लीटली डिसोसिएट करना है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा। ओके, तो कैसे शो करेगा देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए दोबारा से इसने क्या किया, ये सोडियम और ये सोडियम, ठीक है, दे विल कंबाइन, सो क्या बना, Na3, ठीक, और ये H किसके साथ कंबाइन हो गया, ये OH के साथ कंबाइन हो गया, क्या बना, वाटर, H2O, ठीक, और ये सॉल्ट कौन सा बना, Na2 प्लस 1 मोर Na, तो बना Na3, साथ में बना Na3PO4, हियर इट इज, ठीक। तो यहाँ हमारे टोटल सॉल्ट्स बने 3। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एसिड मोनोबेसिक है तो इट विल प्रोड्यूस ओनली वन सॉल्ट, इफ योर acid is dibasic then it is going to produce two salts, and if it is tribasic then it is going to produce 3 salts, ठीक है। अब ये जो हमने अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स देखे, इसमें बच्चे आपने एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो हमारे सॉल्ट्स बन रहे हैं, चलो मैं एक बार दोबारा आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देती हूँ। देखो 1, 2 और 3, इन तीनों सॉल्ट्स में क्या आपको कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखो लेट मी शो यू, ये आपका एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ठीक। नेक्स्ट सॉल्ट देखो, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, लेकिन क्या इस वाले सॉल्ट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं, पिछला वाला जो हमारा डायबेसिक सॉल्ट था, एसिड था, इसमें भी देखो H2SO4 के साथ जो हमारे ये दो सॉल्ट्स बने थे, इन दोनों सॉल्ट्स में देखो एक सॉल्ट में तो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो दूसरे वाला हमारा सॉल्ट बना, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यानी एवरी टाइम दैट वी आर subjecting these acids to the neutralization reaction with the alkalis, we are finding that the types of salt we are getting, one type of salt has got hydrogen in it, whereas the other type of salt does not have any hydrogen in it, ठीक है। डाइबेसिक में जो दो सॉल्ट्स बने थे उसमें से एक में हाइड्रोजन था, एक में हाइड्रोजन नहीं था। सिमिलरली जो हमारा मोनोबेसिक था, ठीक है, उसमें कितने सॉल्ट्स बने थे, उसमें तो एक ही सॉल्ट बना था, लेकिन क्या उसमें हाइड्रोजन था, नहीं था। आपको इसमें एक सिमिलैरिटी नजर आएगी कि हर डाइबेसिक हो, ट्राइबेसिक हो या मोनोबेसिक हो, तीनों में अगर आपके सॉल्ट्स बन रहे हैं तो उसमें मिनिमम एक सॉल्ट कंपल्सरीली ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। देखो जब हमने HCl के साथ सॉल्ट बनाया था, एक इकलौता सॉल्ट बना था, वन सिंगल सॉल्ट विच वाज विदाउट हाइड्रोजन, राइट। जब डाइबेसिक एसिड को हमने न्यूट्रलाइज किया था तो भी हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट बना था जिसमें हाइड्रोजन नहीं था और दूसरा ऐसा था जिसमें हाइड्रोजन था। और देखो जब हमने ट्राई बेसिक सॉल्ट को न्यूट्रलाइज किया
तब भी हमारे पास एक ऐसा एसिड सॉल्ट आया जिसमें हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन बाकी के दोनों में हाइड्रोजन था। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसमें आपका एक कंपल्सरीली ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, और जो बाकी के सॉल्ट्स बनेंगे उनमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। The first type of salt that we are getting is a salt that has got only one positive radical. जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें एक ही पॉजिटिव रेडिकल है। कौन से वाला? वो है ये सोडियम। ठीक है, इट इज दिस सोडियम दैट इज अ पॉजिटिव रेडिकल, और साथ में उसके क्या होगा? इट हैज गॉट वन पॉजिटिव रेडिकल। ठीक, और साथ में क्या होगा? ये ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव रेडिकल हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, राइट? और दूसरा रेडिकल कौन सा है? द अदर वन इज अ नेगेटिव रेडिकल, राइट? नेगेटिव रेडिकल कौन से वाला है? वो है ये फॉस्फेट। और ये हमें ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव रेडिकल जो है वो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन के अलावा कोई भी दूसरा नेगेटिव रेडिकल हो सकता है। इट शुड नॉट बी ओनली प्योर ऑक्साइड। ये फॉस्फेट है, इसमें ऑक्साइड प्रेजेंट है, लेकिन ये फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, दे टुगेदर आर फॉर्मिंग अ फॉस्फेट, सो इट इज अ नॉन मेटालिक रेडिकल। यानी कि एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें हमारे पास एक मेटालिक आयन है और साथ में एक नॉन मेटालिक आयन है। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ सॉल्ट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो कौन से वाला है? जो दूसरा टाइप ऑफ सॉल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज योर salt in which is present, sorry, दूसरा टाइप ऑफ सॉल्ट जो हमें मिल रहा है, that is the salt in which two positive radicals are present. Very important point, two positive radicals are present. ये दो positive radicals कौन कौन से हैं बच्चे? ये दो positive radicals हैं, कौन कौन से हैं? the number one is this sodium and number two is this हाइड्रोजन। दो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं और साथ में क्या प्रेजेंट है? एक नेगेटिव या फिर एक नॉन मेटालिक रेडिकल इज प्रेजेंट। सिमिलरली और देखिए, एक और दूसरा सॉल्ट भी एक एग्जांपल की तरह से देख लेते हैं ऊपर वाले में। यहाँ भी देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट है। ये रहा हमारा पॉजिटिव रेडिकल, ये दूसरा पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है, और ये क्या है हमारा? व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, तो जो दूसरा टाइप ऑफ सॉल्ट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज अ सॉल्ट विच हैज गॉट टू पॉजिटिव रेडिकल्स, जिसमें से एक तो मेटालिक है, दूसरा रेडिकल हाइड्रोजन है एटलीस्ट। ठीक है, और हमारे पास क्या है? साथ में एक नॉन मेटालिक रेडिकल है। ठीक है, सो क्या क्या हमारे पास आ गए? दो तरीके के सॉल्ट्स आ गए। आई एम रिपीटिंग द होल थिंग। द फर्स्ट वन इज द सॉल्ट विच हैज वन पॉजिटिव रेडिकल विच शुड नॉट बी हाइड्रोजन, जैसे Na। ठीक, और साथ में क्या है? एक नेगेटिव रेडिकल विच शुड नॉट बी ऑक्सीजन, जैसे Cl। तो एग्जाम्पल हो गया NaCl। लेट मी राइट इट फॉर यू हियर। NaCl। NaCl में जो सोडियम है आपका, जो सोडियम है वो क्या है? आपका पॉजिटिव रेडिकल है। दिस इज द पॉजिटिव रेडिकल। और Cl क्या है? दिस इज द नेगेटिव रेडिकल। इसके अलावा यहाँ पर देखो कुछ भी दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं है। जबकि जो दूसरे तरीके का हमें सॉल्ट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? जिसमें कि दो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। अगेन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि आई कैन राइट it is NaHSO4
NaHSO4। इसमें NaHSO4 में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके दो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। कौन से दो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं? एक तो हुआ Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, लेकिन जो सल्फेट है, ये जो सल्फेट है आपका, दिस इज अ नेगेटिव रेडिकल। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इसमें जो दो सॉल्ट्स हैं उसमें से two positive radicals, one metallic, one hydrogen and one non-metallic radical। जो सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल आपके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेडिकल होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। और जो दूसरा टाइप है जिसमें दो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, जिसमें से एक कंपल्सरीली हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा मेटल हो सकता है बट हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी है, ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट्स। ठीक है, तो एक हो गया आपका नॉर्मल सॉल्ट, एक हो गया आपका एसिड सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में कोई भी दो, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक आयन हो सकता है, लेकिन ये मेटालिक आयन हाइड्रोजन नहीं होगा। जबकि एसिड सॉल्ट में मेटालिक रेडिकल कोई भी हो सकता है, लेकिन कंपल्सरीली एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, साथ में इट मस्ट हैव अ नॉन मेटालिक रेडिकल।